Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Students, how are you all? Hope you all are doing well and taking your video lessons regularly. Students, in the previous class, I explained you what is an essay, its type and steps of writing essay. So I think so hopefully you have noted down the points which I have given you in the previous class. And now today we will discuss the topic. Your essay topic is pollution, as you can see on the board clearly. And what I did with this thing, you can see the verb. I have written the main points here. You can easily have a look on these points. I will discuss it each and every point thoroughly, inshallah ta'ala, with you. Okay, let's come to the first point. As I told you, during essay writing, it is important to have first decide what type of essay is it. आपको ये decide करना है कि कौन सी type है essay की. So you tell कि I told you there are basically 4 types है essay, that is narrative, descriptive, expository, persuasive. So in which category it comes? ये किस category में आता है? Pollution, because it is about an issue. So that comes under the heading of expository essay, in which you can give the you can compare, you can tell the details, facts and figures. You can illustrate your topic through examples, अपने examples के through, facts and figures के through कर सकते हैं. And in this essay you can also give your own suggestions and advices to resolve the problems, because pollution is an issue. ये problem है, एक menace है, एक hazard है for the community, for the whole world के लिए. So that's why इसके लिए हमें suggestions भी देनी है and I will discuss each and everything with you in this class. Then the second point was you must have some points, you must have some information about the topic. अगर आपके पास information नहीं है relevant, तो read out, read the books, read the different notes, read the journals, go to the library and get the information about that topic. And then if you have information, अगर आपके पास information होगी, then you are able to write it in your own words. Okay, this is very important thing. उसके बाद जो third step था, मैंने आपको बताया था, you will have to make the verb in your copy, in your notebook. I have drawn here, as you can see, I have written the topic here, pollution, and then I divided this topic into 5 different subtopics. Okay, as you can see, the first subtopic is in which we have to tell, we will write about what is pollution और क्या होती है pollution, and then we will discuss its types, not in detail but in brief. Okay, and then we have to tell the causes, उसके reasons, उसके सबब क्या होते हैं वो बताएंगे. And then in the next thing we will discuss, it will steps taken by the government, जो steps जो है government लेती है to reduce the pollution. क्या steps हो सकते हैं, possible steps हम discuss करेंगे. And then we have in the last we have to tell that steps that citizen can take, and हम अपनी suggestions भी दे सकते हैं कि हम citizen को as a citizen हमें क्या करना चाहिए to stop the pollution, to reduce pollution or to cut down pollution. ठीक है, let's come to the first part. What is the first part of this essay in which you are going to tell what is pollution. So pollution, आप क्या समझते हैं कि pollution है क्या? What do you think? It's a good thing, it's a harmless, or what is your opinion about this topic? So I think so it's not a blessing, it is a sort of danger, it is a sort of कर्स. ठीक है, ये आप एक तरीके से बुराई है, एक तरीके से डेंजर है हमारी एनवायरनमेंट के लिए और हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट के लिए, हमारी सराउंडिंग्स के लिए, हमारे एटमॉस्फेयर के लिए. सो व्हाट पोल्यूशन इज़ एक्चुअली, पोल्यूशन इज़ द एडिशन ऑफ द इम्प्योर एलिमेंट्स या हार्मफुल एलिमेंट्स, या आप कह सकते हैं कि पॉइजनस एलिमेंट्स इन द एनवायरनमेंट, इन द एटमॉस्फेयर, इन द नेचुरल एनवायरनमेंट.
environment. Okay, I have written, as you can see on the whiteboard, I have written the word bank. I have made the word bank in which I have given different vocabulary. In this you can see the first word is menace, and instead of menace there is a synonym. You can use it here, danger, and instead of danger you can use synonym here, threat. So your essay can be different. You can write it in a different way, as you can, your first sentence could be like this: pollution is a great menace, is a great danger, a threat for and for the environment. And you can also write that it is the addition of poisonous elements in the atmosphere. So in this way you can start your essay directly with the topic, that is pollution. एंड इसके अलावा आप क्या लिख सकते हैं इन द फर्स्ट पैराग्राफ. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई हैव टोल्ड यू कि एवरी पैराग्राफ मस्ट बी ऑफ 5 to 6 sentences. सो व्हाट विल बी द फर्स्ट सेंटेंस? आपका फर्स्ट सेंटेंस क्या हो सकता है? आप यू कैन टेल द डेफिनेशन अबाउट द पोल्यूशन एंड इज इट डेंजरस और नॉट. यू विल टेल दिस थिंग एंड इज इट affect your life or not. Yes, it is adversely affects our life. हमारी लाइफ को भी अफेक्ट कर रही है, हमारी सराउंडिंग्स को भी, बिकॉज ड्यू टू पोल्यूशन हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है हमें बहुत सारी डिजीज़ जो हैं वो पोल्यूशन की वजह से हमें फेस करनी पड़ती है, कॉज होती हैं, सबब बनती हैं. सो यू कैन राइट इन दिस पैराग्राफ अबाउट द पोल्यूशन एंड इट्स हार्मफुल इफेक्ट्स. ओके, नाउ कम टू द second paragraph. In the second paragraph you are going to discuss about its type and how you are going to discuss about the second type of pollution. In the second paragraph you will tell about the types of pollution, कि how many types of pollution are there. as you can see, आप देख सकते हैं types of pollution में हमारे पास वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो 4 basic types हैं they are air pollution, water pollution, land pollution and noise pollution. ओके, सो आप सबसे पहले ये बताएंगे कि पोल्यूशन इज़ ऑल अराउंड अस एंड देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ पोल्यूशन लाइक एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, so land pollution and noise pollution, and every form of pollution is very harmful या injurious for us. हर टाइप की पोल्यूशन जो है वो हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है. पर आप जो है वो हर टाइप की पोल्यूशन को जो है वो डिस्कस करेंगे कि नॉट इन डिटेल, इन अ शॉर्ट फॉर्म, इन अ ब्रीफ वे यू विल डिस्कस व्हाट इज एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन क्या होती है कि इट इज़ द मोस्ट डेंजरस फॉर्म इन एंड इट इज़ द एयर पोल्यूशन इज द प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक गैसेस इन द एयर, यानी पॉइजनस गैसेस की जो प्रेजेंस होती है या एडिशन ऑफ टॉक्सिक गैसेस की एनवायरनमेंट में जो एडिशन होती है उसको वो क्या होती है, दैट कॉज एयर पोल्यूशन. ठीक है, इसका सबब क्या होता है कि पॉइजनस गैसेस जो हैं जो एयर में मिक्स हो जाती है, मतलब पॉइजनस गैसेस मिक्स into the air, into the atmosphere, तो वो that creates a air pollution. So this is the contamination of air in the atmosphere that is very harmful for every living being या हर जानदार के लिए जो है वो क्या है, harmful है. Now come to the second type, water pollution. It is one of the most important water is one of the most important natural resources, and you know that. So addition of harmful products या harmful substances to the water which make it unusable is called the water pollution. यानी water pollution में ऐसी harmful bodies का एडिशन हो जाना या मिक्स हो जाना दैट जो हार्मफुल है, तो वो क्या क्रिएट करती हैं, वो वाटर पोल्यूशन क्रिएट करती हैं. यू विल हैव टू डोंट गो इनटू पिटी डिटेल्स, बहुत सारी डिटेल्स में मत जाइएगा, बस आपको यू विल हैव टू एक्सप्लेन व्हाट वाटर पोल्यूशन इज. देन कम टू द लैंड पोल्यूशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैंड पोल्यूशन? लैंड पोल्यूशन मीन्स, और इसको हम जो है वो सॉइल पोल्यूशन भी कहते हैं, एंड इट इज कॉल्ड लैंड पोल्यूशन इज द डिपोजिशन ऑफ वेस्ट मटेरियल इन द लैंड दैट कंटैमिनेट्स द सॉइल. ऐसी वेस्ट मटेरियल का डिपॉजिट हो जाना जो लैंड को ख़राब कर दें, तो वो कौन सी पोल्यूशन होती है? दिस इज कॉल्ड द लैंड पोल्यूशन. ठीक है, उसके बाद नाउ कम टू द नॉइज़ पोल्यूशन. नॉइज़ पोल्यूशन मीन्स क्या होता है
कि एक्सेसिव साउंड्स जो होती हैं यानी अनडिज़ायरेबल साउंड्स जो होती हैं या अनबियरेबल साउंड्स जो होती हैं जो हम जिनको हम सुन के हमारे जो है वो कान एयर डेफनेस हो जाए या मेंटल इलनेस हो जाए या मेंटल एलिमेंट्स हो जाए, तो वो ऐसी पोल्यूशन जो हमारे लिए नॉइज़ ऐसी नॉइजेस जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अनबियरेबल है, तो उनके उस पोल्यूशन को क्या कहते हैं, दिस टाइप ऑफ पोल्यूशन इज कॉल्ड द नॉइज़ पोल्यूशन. सो आई टेल यू इन इंग्लिश, नॉइज़ पोल्यूशन दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द साउंड पोल्यूशन इज द हार्मफुल एंड एनॉइंग लेवल ऑफ नॉइज़. ठीक है, एनॉइंग लेवल ऑफ नॉइज़ का मतलब है यानी ऐसी नॉइज़ जो आपको जो है इरिटेट करे, परेशान करे, दिस इज कॉल्ड द नॉइज़ पोल्यूशन. सो आई हैव डिस्कस this will be your second paragraph, students, in which you will discuss the types, not in detail but in short and brief in precise form. Okay, then on to in the third paragraph, what you are going to do, you will discuss the causes. Causes means the reasons. What are the reasons? इसके reasons क्या हैं पोल्यूशन के, किन किन वजूहात की वजह से जो है वो हमें पोल्यूशन होती है, हमारे एनवायरनमेंट पोल्यूट होता है, कंटेमिनेट होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है उसकी नेचुरल ब्यूटी. तो वो हम उनको डिस्कस कर लेते हैं. आपको भी आइडिया होगा, यू हैव एन आइडिया कि वो कौन सी जो मेन जो वजूहात हैं, जो मेन जो कॉजेज़ हैं, आपको भी पता होंगे. आप यू कैन ऑब्जर्व इन योर सराउंडिंग्स, आप अपने सराउंडिंग्स में भी आपने ऑब्जर्व किया होगा. आपने देखा होगा व्हेन यू गो टू स्कूल, तो ऑन द वे यू सी दैट के व्हीकल्स में जो फ्यूम जो है एक्सपेल होता है, इमिट होता है, वो कितना हार्मफुल होता है, बिकॉज इट समटाइम इट आपको जो है वो कफिंग होने लगती है एंड यू हैव एलर्जी हो जाती है या स्किन एलर्जी हो जाती है. दीज आर सम थिंग्स दैट आर द इफेक्ट्स ऑफ दीज टाइप ऑफ पोल्यूशन. ठीक है, और पर्पसलेस होंगी. अब आपने चैप्टर भी पढ़ा है. अच्छा स्टूडेंट्स, वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि जो वोकैबुलरी आप इंग्लिश टेक्स्ट में पढ़ते हैं, जो आप वर्ड्स आप इंग्लिश टेक्स्ट में या इंग्लिश लिटरेचर में आप सीखते हैं चैप्टर से न्यू वर्ड, please keep remember these words. These are very helpful for you while you write the composition, while you do composition. Okay, और अपने ग्रामर के स्ट्रक्चर्स को भी उसमें याद रखिए, और आपको कौन सा टेंस यूज़ करना है, कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ करना है. आई विल टेल यू कि इस फॉर दिस ऐसे विच टेंस यू आर गोइंग टू यूज़, आई विल टेल यू आफ्टर डिस्कसिंग द पॉइंट. सो आपको जो है वो अपने आपको ये रिमेंबर कि आपका जो चैप्टर था इट वॉज इफेक्ट्स ऑफ आवर एक्शंस ऑन द एनवायरनमेंट, तो उसमें आपने पढ़ा था यू हैव रेड अबाउट पर्पसलेस स्मोकिंग, अनअटेंडेड हीप्स ऑफ गार्बेज और बहुत सारी चीज़ें, फ्यूम्स एमिटिंग फ्रॉम द व्हीकल्स. तो ये कॉजेज़, ये सम कॉजेज़ थे ना, ये सब कुछ रीजंस हैं जो पोल्यूशन क्रिएट करते हैं. तो आप वो वाले रीजंस को भी डिस्कस कर सकते हैं. आई ऑल्सो हैव रिटन, मैंने यहाँ पर भी लिखे हैं एज यू कैन सी. फर्स्ट आई हैव रिटन इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक वेस्ट की वजह से जो है वो पोल्यूशन होती है. फ्यूम्स जो इमिट होते हैं फ्रॉम द व्हीकल्स एंड फ्रॉम द फैक्ट्रीज और चिमनीज ऑफ द हाउसेस से जो होते हैं. इसके अलावा पर्पसलेस हॉन्किंग या यूजलेस हॉन्किंग यानी बेमकसद जो है वो गाड़ियों को हॉर्न ब्लो करना. डिफॉरेस्टेशन यानी कटिंग द ट्रीज इन द फॉरेस्ट यानी यूजलेस, अपनी सिर्फ डिज़ायर को आप अच्छे घर बनाने के लिए, अच्छा फर्नीचर बनाने के लिए जो हमारी जो ये जंगलात होते हैं उनको कट करना है. दिस इज़ वेरी इलीगल. इस पे जो है वो हुकूमत जो है, जो गवर्नमेंट होती है वो चार्ज करती है लोगों से अगर वो लोग जो है वो इलीगल कटिंग ऑफ ट्रीज करते हैं. इसी तरह और भी बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं कि व्हेन यू गो टू द पिकनिक द पीपल थ्रो द गार्बेज इनटू द वाटर. वो लोग, आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ ये लोगों को मैनर्स भी नहीं है कि वो लोग क्या करते हैं, दे आर यूज टू थ्रोइंग गार्बेज इनटू द वाटर. वाटर में दिस ऑल्सो कंटेमिनेट द जो शिप वगैरह जो होते हैं, बिग शिप जो होते हैं, वो समटाइम्स स्पिल ऑयल इनटू द वाटर. वो उसकी वजह से जो है हमारी मरीन लाइफ ऑफ जो है वो सी लाइफ जो है वो क्या होती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है. और भी बहुत सारे, इफ़ यू ऑब्जर्व, इफ़ यू थिंक अबाउट कि कौन से कॉजेज़ हैं, तो यू हैव मैनी थिंग टू राइट. इवन कि आपके पास इतना लंबा हो जाएगा कि आपको खुद समझ में नहीं आएगा, लेकिन बट यू विल हैव टू राइट द मेन पॉइंट्स हियर. ओके, सो यू इन द थर्ड पैराग्राफ यू विल डिस्कस द कॉजेज ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, एयर, वाटर, लैंड एंड नॉइज पोल्यूशन. ओके, एंड देन इन द फोर्थ
paragraph, that will be your second last paragraph, in which you will discuss that what are the important steps that the government should take to reduce, to cut down, to डिक्रीज द पोल्यूशन। ठीक है, आपके गवर्नमेंट को कौन से ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जिसकी वजह से जो है वो अपने ये इस पोल्यूशन जो एक ही बहुत ही ग्रेट डेंजर है, एक थ्रेट है हमारी कम्युनिटी के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए, सारी लिविंग बीइंग के लिए, तो उसको कैसे क्या हम स्टेप्स लें जिसकी वजह से जो है वो हम पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं। तो आपका क्या होगा कि द गवर्नमेंट शुड टेक सीरियस स्टेप्स, prominent steps लेने चाहिए टू स्टॉप पोल्यूशन, टू रिड्यूस पोल्यूशन, टू कट डाउन पोल्यूशन। क्या करना चाहिए? द फर्स्ट शुड बी कि गवर्नमेंट्स को जो है वो मेक द कंट्री ग्रीन, कहीं जो है वो बाय प्लांटिंग ट्रीज एट डिफरेंट प्लेसेस, ताकि जो है हम जितनी ज़्यादा एज यू नो दैट कि जो है वो जो ट्रीज होते हैं वो एक हम ऐसे हमारे एक रेयर नेचुरल एब्जॉर्बेंट हैं, वो हमारी सारी कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, to plant the trees at every corner at possible places, and this is also the second step that factories, industries और जो ये mills होती हैं that always be set up far from the residential areas। जो ये industries हैं, airports हैं और ये जो कहते हैं फैक्ट्रीज़ हैं, इनको हमेशा जो रेजिडेंशियल एरियाज़ जो होता है जहाँ लोग रहते हैं वहाँ से क्या होना चाहिए, दूर होना चाहिए, ताकि जो है वो उनका जो वेस्ट मटेरियल है और जो उनका जो फ्यूम्स हैं या जो है जो उनकी मशीनों की आवाज़ें हैं जिसकी वजह से नॉइस पोल्यूशन क्रिएट होती है, सो वी कैन नॉट the citizen, the dwellers of the city cannot face all these problems। ओके, तीसरा और बहुत सारे स्टेप्स लिए जा सकते हैं, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रेज अवेयरनेस अबाउट, आपने चैप्टर में भी पढ़ा था कि जो है वो जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कितना अच्छा स्टेप लिया था कि उन्होंने एक होल डे कैंपेनिंग प्रोग्राम अरेंज किया था टू रेज अवेयरनेस अबाउट पोल्यूशन अमंग द पीपल। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक कैंपेन की थी, फिर उन्होंने उसके लिए हैंडबिल्स बनाए थे, एंड दे हैव मेड द चार्ट्स एंड पोस्टर एंड दे गिव द सम अवेयरनेस अबाउट पोल्यूशन, ताकि लोगों में एक अवेयरनेस आ सके, वो अपने सराउंडिंग्स को भी क्लीन कर सके। तो जो गवर्नमेंट को जो है वो कहते हैं डिफरेंट लोगों को अवेयर करने के लिए प्रोग्राम, ये ऐसे प्रोग्राम्स जो है वो ऑर्गेनाइज करने चाहिए। इसी तरह और भी बहुत सारे स्टेप्स हैं कि जो आई हैव रिटन ओनली 2 or 3 points आई हैव डिस्कस हियर, बट आई थिंक सो यू हैव मोर पॉइंट्स, और आपके पास इससे ज़्यादा पॉइंट्स होंगे। ट्राई टू राइट इट in your while you write an essay। Okay, now come to the next paragraph, that will be your last paragraph, means 5th paragraph। Okay, steps that citizen can take। अब हमारी क्या जिम्मेदारी है, because not every responsibility lies on the shoulder of government। हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग जो है वो गवर्नमेंट पे डाल देते हैं। दिस इज़ अनफेयर, दिस इज़ टोटली नॉट अ गुड थिंकिंग, बिकॉज वी हैव टू परफॉर्म आवर ड्यूटी, हमें अपना रोल परफॉर्म करना है, एंड व्हाट रोल वी कैन परफॉर्म, व्हाट सॉर्ट ऑफ रोल वी कैन परफॉर्म, कि हम भी वी कैन डू नंबर ऑफ थिंग्स। Okay, 100 of things we can do to cut down the pollution। People should throw, क्या कर सकते हैं, first of all it is very important to throw the garbage, to throw the litter, to throw the rubbish into the dustbin। Okay, because we are habitual to throw outside, just we kick out the we clean our houses and just we throw the garbage outside the house, so this is not a good job। Okay, so you must, and throw the garbage। The second thing you can do, you will have to keep your surrounding neat and clean, spick and span। ओके, अपनी सराउंडिंग्स को भी, अपने एरिया को, अपने लोकेलिटी को, अपने नेबरहुड एरिया को भी क्लीन रखिए। इसके अलावा जो है आप जो है अपनी व्हीकल्स को, अगर दे आर एक्सपेलिंग, और अगर ये लोग अगर जो है ये आपकी व्हीकल्स जो है, आपकी कार्स, आपकी मोटर बाइसाइकिल्स वो इमिट कर रही हैं, बहुत ज़्यादा रिलीज़ कर रही हैं फ्यूम्स, तो आप उसको मेंटेन कीजिए और ऐसे फ्यूल्स यूज़ कीजिए लाइक वी हैव सम गैस दैट did not release the fumes, तो CNG गैस का इस्तेमाल कीजिए, it is more preferable। So these are the some steps in this is
तो इसके अलावा और भी आप बहुत काम कर सकते हैं। सम पीपल स्मोक पब्लिकली। आप जो बहुत सारे लोगों को स्मोकिंग, दे आर हैबिचुअल ऑफ स्मोकिंग। से सबसे पहली जो चीज़ ये है कि स्मोकिंग मस्ट बी प्रोहिबिटेड एट पब्लिक प्लेसेस, यानी मना होनी चाहिए पब्लिक प्लेसेस पे, ताकि जो है वो स्मोकिंग जो है वो हमारी एयर पोल्यूशन भी वो करती है। और दूसरी ये कि वो जो आपका पैसिव स्मोकर होता है, जो आप वो स्मोकिंग एक करने वाला होता है, एक जो है उसके करीब जो बैठा हुआ शख्स होता है या उसके इर्द गिर्द जो होते हैं, दीज आर कॉल्ड पैसिव स्मोकर। तो उनके लिए भी, उनके लंग्स के लिए भी बहुत हार्मफुल होती हैं। सो और देयर आर और सो मेनी स्टेप दैट कुड बी टेकन टू रिड्यूस पोल्यूशन, बट आई हैव डिस्कस ओनली द फ्यू पॉइंट्स हियर। इंशाअल्लाह ताला you will write more than these points. Okay, so I recapitulate what I explained you, but the topic is pollution, and I have divided this topic into 5 paragraph, 5 subtopic. In the first paragraph I am writing for you. You can see I have written different paragraphs here. For the first paragraph, I am telling you again what is pollution. आप pollution को बताएंगे कि what is pollution, what pollution is actually is. तो और उसके बाद ये हमारी environment के लिए कैसी चीज़ है, is it harmful or not. बाकी जो है in 5 to 6 sentences you will discuss about pollution and a little detail. Okay, then come to the second paragraph, in which you will tell about the types and basic the 4 basic types of pollution. Okay, and about the air pollution, water pollution, land pollution and noise pollution. In the third paragraph you will tell about the causes. Causes means reasons. आप reasons बताएंगे कि कौन से different reasons होते हैं कि burning of garbage, industrial and domestic waste, fumes from the vehicles and the factories and the chimneys of the houses, purposeless or useless honking, deforestation, throwing dumping of waste material directly without treatment के जो है वो directly जो है water में throw करना. This is also called all these types: air, water, land and noise pollution. And in the second last paragraph, what you will do, you will discuss about कि what steps should be taken by the government, कि seriously उसको notice करना चाहिए. And you will tell about कि plantation is necessary, set up the industries, airports and mills and factories far from the residential area. And it is very important to raise the awareness about the pollution, about the dangers of pollution among the people. Okay, in the last paragraph you will discuss about steps that citizen can take. कौन से steps लेने चाहिए citizens को, क्या steps जो हैं हम ले सकते हैं while to reduce pollution. Throwing garbage into the dustbin, keep surroundings clean, maintain the vehicles, use smokeless fuels and any बहुत सारे और steps ले सकते हैं. When you will write, you can write more than this. Okay. अच्छा, the very important note is that which tense you are going to use. As I told you, as we have discussed in the steps of writing essay, उसमें मैंने आपको बताया था the tense very important. Be careful because it is about the issue. So that's why you will have to use the present tense here. Okay, and for the pollution you use impersonal pronoun. Keep note down this. Kindly note down this कि कौन सा आपको टेंस यूज़ करना है. आपको प्रेजेंट टेंस यूज़ करना है, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस. Future tense, when you are giving the suggestion, it can be you can use it, but modal auxiliary like should, must can be used while you are giving the suggestion in the last 2 paragraph. तो आप जब suggestion दे रहे हैं, steps taken by the government और steps that citizen can take, उसमें आप जो है वो should और must का use भी कर सकते हैं. And now come to, I am showing you the word bank. I have written the words here, so I am providing you some vocabulary. You can note down menace, danger, threat. ख़तरे को कहते हैं. कंटामिनेट का मतलब क्या होता है? टू मेक डर्टी समथिंग. पॉल्यूट का मतलब भी ख़राब कर देना, किसी चीज़ को गंदा कर देना. डर्टी लिख लें या हार्मफुल लिख लें या अनक्लीन लिख लें. हैविंग बोथ थ्री हैव सेम मीनिंग्स. ऑल 3 हैव सेम मीनिंग. एडवर्स यानी बुरी तरीके से. अनडिज़ायरेबल. टाइप्स, फ्यूम्स का मतलब भी क्या होता है? धुआं. स्मोक का मतलब भी धुआं होता है. एक्सपेल का मतलब क्या होता है? खारिज करना. इमिट भी सेम मीनिंग है. रिलीज़ उसका सिनोनिम है. टॉक्सिक, जहरीली, पॉइजनस का मतलब भी हैविंग का सेम मीनिंग. डोमेस्टिक का मतलब घरेलू. हाउस होल्ड का मतलब भी क्या होता है? घरेलू होता है. एंड यू कैन सी इंस्टेड ऑफ गार्बेज यू कैन यूज़ लिटर.
rubbish having a same meaning. Purposeless के बजाय आप useless भी यूज़ कर सकते हैं. Honking है या honking के बजाय आप यूज़ कर सकते हैं blow the horn या ओके. dumb means होता है डालना, कहीं फेंकना. थ्रो मीन हैविंग अ सेम मीनिंग. बर्निंग मीन्स जलाना. कंबशन मीन्स जलाना होता है. डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है टू कट डाउन द ट्री. ये प्रोसेस है एंड यू कैन यूज एज अ वर्ब. कटिंग ट्रीज भी कर सकते हैं. प्रोमिनेंट एंड सीरियस both have a that can be both can be replaced by each with each other. okay. steps लिख सकते हैं. punishable यानी जिसके पे आपको जो है पनिश की जाती है, that is called punishable. publicly यानी locally यानी लोगों के सामने कि आप उस वक्त यूज़ कर सकते हैं कि स्मोकिंग शुड नॉट बी अलाउड पब्लिकली. या अलाउड की जगह आप अगर नॉट अलाउड नहीं लिखना चाह रहे तो प्रोहिबिटेड लिख सकते हैं. प्रोहिबिटेड मीन्स होता है मना करना. नेबरहुड लिख लें, अपनी लोकेलिटी के लिख लें, एरिया लिख लें, सराउंडिंग्स लिख लें, वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट. रिड्यूस के लिए हम के बजाय हम डिक्रीज का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं और कट डाउन का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं. एंड देयर आर सो मेनी वर्ड्स यू कैन यूज़. okay. try to use the synonym as I told you while I explained steps of writing essay. उसमें मैंने आपको बताया था repetition of sentences and repetition of words are not allowed. आप बार बार एक ही वर्ड को इस्तेमाल करने से प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा. एक ही वर्ड बार बार इस्तेमाल मत कीजिएगा अपने essay में. try to use the synonym of यानी आप उसी मीनिंग का दूसरा वर्ड यूज़ कीजिए. look up the meaning in the dictionary. you can find the different words. okay. having the same meaning. Inshallah Taala, I'm giving you the homework. You have a homework for today to write an essay on pollution. आपको essay लिखना है pollution पे. and please in your grammar copy you will do this work. okay. and how I will show you. ओके स्टूडेंट्स, आपको पता है कि आपको ये काम जो है वो आपको ग्रामर अपनी कॉपी में यू हैव टू मेक द टू पोर्शन ऑफ योर ग्रामर कॉपी. वन इज़ फॉर ग्रामर वर्क एंड अदर इज़ फॉर कंपोजिशन वर्क. मेक इट हाफ and then you will draw this. on the next page you will write the heading of this topic and then you will make a verb as you can see on the whiteboard. उसके बाद जो है वो आप अपना rough draft, as मैंने आपको जैसे बताया था steps of writing an essay में, कि you will have first you will write the rough draft with pencil in the same copy and don't forget to note down the word bank. okay. word bank लिखना मत भूलिएगा because these words are very helpful for you while you write an essay. और उसके आप जो है पहले आप रफ ड्राफ्ट बनाइए एंड देन इंशाल्लाह ताला वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास. ओके. एंड डोंट फॉरगेट टू राइट योर एसे फर्स्ट इन रफ. ओके. इन द सेम कॉपी. आप अपने इसी कॉपी में पहले रफ लिखेंगे एंड हाउ मेनी पैराग्राफ? 5 पैराग्राफ्स. ओके. inshallah hope you understand. if you do not understand, watch this video again and do your work properly and take interest and get the points about the topic pollution. inshallah taala you can do it easily. for till then we will meet you in the next class. till then stay home, stay safe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.